Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will continue our last lecture in which we have discussed about the law of refractions, which is nothing but there are two laws of refraction, first law of refraction and second law of refraction. According to first law of refraction, the sine of the angle of incidence, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of the angle of refraction is a constant, and this constant is known as refractive index of the second medium with respect to first medium when light goes from one medium to another medium. Okay, and second law is nothing but the incidence ray and the refraction ray and the normal at the point of incidence or all in a same plane, lie in a same plane. Okay, so in this video now we will continue this topic, and here we have found the answer of due to which reason the refraction of light occurs. Okay, so the basic reason is nothing but you know very well, suppose this is a transparent medium and it's the boundary of two mediums, between two mediums. Suppose this is medium first and this is medium second, and there is a normal at this point, and when a light ray incident on this point like this, there is angle of incidence I and refracted and goes in second medium at angle of refraction R. Okay, then according to, यहाँ पर हम बात करेंगे रीज़न की. ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, sin I by sin R equals to a constant 1 and 2, which is known as, where 1 and 2 is known as refractive index of medium second with respect to first medium first. Okay, and you know very well, using the definition of refractive index, 1 and 2 is nothing but V1 by, or can be write like this, N2 by N1 or V1 by V2. Okay, so the main reason due to which refraction occurs when light goes from one medium to another medium is nothing but the velocity of the light or speed of light. If the speed of light differs in any two mediums,
then there will be the phenomena of refraction of light occurs. ठीक है ना। तो मेन रीज़न क्या है कि आपका रिफ्रैक्शन तब होगा जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट मीडियम में क्या होगी, डिफरेंट। तो मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट का डिफरेंट होना आपका मेन रीज़न है रिफ्रैक्शन होने का, क्योंकि यदि आपका ये डिफरेंट होगा, 1 N2 आपका डिफरेंट होगा, दैट मीन्स N2 N1 आपका डिफरेंट होगा। दैट मीन्स यदि V1 और V2 आपके डिफरेंट हुए, N2 बाई N1 डिफरेंट होगा, N2 1 बाई N1 डिफरेंट होगा, तो ये वैल्यू आपकी 1 से डिफरेंट होगी, ये वैल्यू 1 से डिफरेंट होगी, तो ये आपके कभी भी इक्वल नहीं हो। ठीक है ना। द बेसिक रीज़न सो the basic reason for refraction of light is the change in speed or velocity of light from one medium to another medium। ठीक है ना। ओके, क्लियर है ना यहाँ तक। चलिए, आपने एक रिलेशन पढ़ा होगा, सिंस V इक्वल्स टू होता है आपका n लैम्डा, वेयर n इज द फ्रीक्वेंसी, हेयर we यूज द नोटेशन न्यू। ओके, न्यू फॉर frequency, where this is frequency and lambda is wavelength. Okay, remember here, since the frequency remains unchanged when light goes from one medium to another। क्लियर है ना। सो फॉर मीडियम फर्स्ट, V1 will be equals to nu into lambda 1. For medium second will be V2 equals to nu into lambda 2. Implies that sin I by sin R will be equals to 1 and 2 will be equals to n2 by n1 will be equals to V1 by V2 will be equals to lambda 1 by lambda 2। ओके, तो मेन रीज़न आपका क्या है कि वेलोसिटी चेंज होना और फ्रीक्वेंसी आपकी अनचेंज रहती है। तो यदि आपकी लाइट्स की वेवलेंथ चेंज होती है तब भी आपका लाइट में क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम पर जाने पर आपके लाइट की वेवलेंथ चेंज हो जाती है, तो इसीलिए आपका वहाँ पर क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। यदि मीडियम सेम होगा तब ऐसा नहीं होगा। क्लियर है यहाँ तक। अब थोड़ा सा आगे चलने की बात करें, न्यूमेरिकल्स में काफ़ी हेल्पफुल होगा ये डाटा आपको। थोड़ा सा ये बात करेंगे कि यहाँ पर दो कंडीशन हो सकते हैं कि आपकी जो लाइट रिफ्रैक्टेड लाइट रे है
वो टुवर्ड्स नॉर्मल आपकी बैंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। तो इन कंडीशंस को हम चेक करते हैं। हम सबसे पहले केस लेंगे, केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि ये आपका रेयर मीडियम है और ये आपका डेंसर मीडियम है। क्लियर है ना? तो रेयर मीन्स हल्का और डेंसर मीन्स हैवी। तो रेयर मीन्स जो हल्का मीडियम होगा उसमें वेलोसिटी आपकी क्या होगी, कम होगी, और जो डेंसर होगा, जो रेयर होगा, जो हल्का मीडियम होगा उसमें वेलोसिटी लार्ज होगी, और जो डेंसर होगा उसमें वेलोसिटी कम होगी। ठीक है। केस फर्स्ट, फॉर रेयर टू डेंसर मीडियम, ठीक है ना? तो यहाँ पर आप देखिए V1 विल बी ग्रेटर दैन V2, implies दैट V1 ग्रेटर दैन V2 है ना? तो आपने पढ़ा होगा, सिंस, आप आइडिया निकाल लीजिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम एब्सोल्यूट C बाय V1। क्लियर है ना? तो यहाँ से आप इम्प्लाइज दैट करिए V1 विल बी इक्वल्स टू C बाय N1। सिमिलरली V2 इक्वल्स टू C बाय N2। अब यहाँ पर पुट करिए तो यहाँ से मिलेगा C बाय N1 ग्रेटर दैन C बाय N2। दैट मीन्स C से C कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बाय N1 ग्रेटर दैन 1 बाय N2। मल्टीप्लाई कर दीजिए, N2 ग्रेटर दैन N1। दैट मीन्स जो आपका डेंसर मीडियम होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम से लार्ज होगा। तो इस केस की हम बात करेंगे। अब यहाँ पर आइए ज़रा, स्नेल्स लॉ में। स्नेल्स लॉ में हमें क्या चाहिए? स्नेल्स लॉ में हमें चाहिए N2 बाय N1, N2 बाय N1, देयरफॉर 1 N2 विल बी इक्वल्स टू N2 बाय N1। यहाँ से जरा N2 बाय N1 निकालिए, N2 by N1 will be greater than 1, that is greater than 1. So using Snell's law, sin I by sin R will be greater than 1, implies that sin I will be greater than sin R, that is I will be greater than R. दैट मीन्स जो आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा वो एंगल ऑफ इंसिडेंस से आपका क्या होगा, छोटा होगा। इसका मीनिंग ये हुआ कि यदि आपकी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो उस कंडीशन में आपकी लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल क्या हो जाएगी, बैंड हो जाएगी। ये ऑलवेज ध्यान रखिएगा। दैट इज इफ लाइट एंटर्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम, then light bends towards normal। ओके, अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। सिमिलरली जो आपका सेकंड केस है उस सेकंड केस में क्या होगा, मैं सेकंड केस की बात करूँगा। डेंसर टू रेयर मीडियम, फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम, तो जस्ट अपोजिट बात करेंगे। अब ऊपर का डेंसर कर दिया गया है और नीचे का रेयर कर दिया गया है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। तो ट्राई करते हैं क्या होगा इस कंडीशन में। तो जब आप इस कंडीशन की बात करेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर कर लेते हैं थोड़ा सा काम इस पर। तो क्या मिलेगा आपको, फॉर डेंसर टू रेयर मीडियम मीन्स आपका डेंसर में जो वेलोसिटी होगी, फर्स्ट मीडियम डेंसर है तो डेंसर में वेलोसिटी क्या हो जाएगी आपकी, v1 will be less than v2, v1 will be less than v2 according to this relation, here put the value of v1 and v2, then we will get
C/n1 less than C/n2 implies that 1/n1 less than 1/n2, so n2 will be less than n1. That means refractive index of the rare medium will be less than denser medium. सब जस्ट अपोजिट हुआ ना, देखिए आप, ठीक है ना। तो वही कंपैरिजन हमने यहाँ से लगाया। सो यहाँ से आप निकालिए, आपको चाहिए क्या, 1 and 2. 1 and 2 is nothing but n2 by n1, and from here n2 by n1 is nothing but less than 1. This value is less than 1. Using Snell's law, sin I by sin R equals to 1 and 2, and this is less than 1. So sin I by sin R इधर ना, तो sin I will be less than sin R. That means implies that I will be less than R. That means if light ray enters from denser to rare medium, then light goes away from the नॉर्मल। तो इस केस में ऐसा हुआ ना, तो सेकंड केस जो हमने यहाँ बात की कि ये लाइट रे आई आपकी, सपोज कीजिए ये आपका डेंसर है, ये आपका क्या है, रेयर है। तो अब लाइट ऐसे जानी चाहिए, तो लाइट क्या होगी, इस नॉर्मल से दूर हट जाएगी। ये हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, आपको ऑलवेज याद रखने हैं। इसलिए जब भी आप रिफ्रैक्शन की बात करेंगे और मीडियम की बात करेंगे, तो आपको वहाँ पर स्पेसिफाई करना होगा कि रेयर मीडियम कौन सा है, डेंसर कैसा है। जैसे फॉर एग्जांपल आप कंसीडर कीजिए कि वाटर है और ग्लास है, तो वाटर जो है ग्लास के कंपेरिजन में कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है। इसलिए हम वाटर को रेयर और ग्लास को डेंसन कंसिडर करेंगे। और अनदर एग्जांपल ले लीजिए, जैसे एयर है और वाटर है, वाटर के कंपैरिजन में एयर को आप क्या कंसीडर करेंगे, रेयर मीडियम। और जो आपका ये होगा क्या बोलेंगे, वाटर होगा, उसे आप डेंसर मीडियम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना। तो ऐसे ही आप अनदर एग्जांपल ले लिए, जैसे ग्लास ले लिया और आपने डायमंड ले लिया, डायमंड आपके ग्लास के कंपेरिजन में ज़्यादा हैवी है, तो उसे हम डेंसन कंसिडर करेंगे। लेकिन नॉर्मल कंडीशंस में ये कहा जाता है, कुछ सिचुएशंस में जस्ट अपोजिट भी होता है। तो आप 10th लेवल पर डेंसिटी के बेस पर भी आप डेंसन और रेयर मीडियम को डिफाइन कर सकते हैं, बट डेंसिटी के बेस पर ऑलवेज ये जो कंडीशन है ट्रू नहीं होती है। इसलिए आप उनकी डेंसिटीज़ का कंपैरिजन कर कर भी आप इसे एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और डिस्कस करेंगे, रिवर्सिबिलिटी, और साथ में यदि आपकी कोई लाइट रे मोर देन 2 मीडियम से पार क्रॉस करती है, तो उस कंडीशन में उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस में क्या रिलेशन होगा, उसे हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।